So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 55 of Engineering Thermodynamics. Okay. So, today we have to discuss the last topic of the unit number 5. Okay. What is the topic? The measurement of a dryness fraction of a steam. Is how to measure the dryness fraction of a steam. मतलब जो स्टीम हमारे पास में है वेट स्टीम, वो वेट स्टीम के अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना रहता है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है बच्चों. तो देखिए, सो देयर आर मैनी कैलोरीमीटर्स इज यूज टू डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ वेट स्टीम. मीन्स विच इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज द कैलोरीमीटर्स. So we shall discuss the following calorimeters, okay, in this text. So what are the type of the calorimeters? First is barrel calorimeters, second is separating calorimeter, third one is throttling calorimeters, and fourth number is combined separating and throttling calorimeters. Okay, so let's first of all we discuss the barrel calorimeters. This PDF I am referring from which book? Mahesh Rathod, Thermal Engineering. So this is the figure of the guys barrel calorimeters. Okay. So look at the construction I am working here. Let's we discuss the barrel calorimeter as shown in figure. A known mass of a steam at a pressure P is condensed in the presence of known quantity of water filled in the barrel calorimeters. Yes, here we know the mass of the steam. Okay, and we know the mass of the water which is filled inside this barrel calorimeters. Okay, as the steam condenses, the mass and temperature of the water is increases. बराबर है. जैसी स्टीम कंडेंस हो जाएंगी तो मास ऑफ वाटर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो हियर द अमाउंट ऑफ heat lost by a wet steam and amount of heat received by the water in the calorimeters are equated to obtain the dryness fraction of a wet steam as given below, guys. Okay, so if you observe in this diagram, if you observe the construction, so this is the platform. So on a platform this barrel calorimeter is mounted. Inside this barrel calorimeter what is put? This is the water. This water is put up here. Yes or no? Yes, the water is put up here inside the barrel calorimeters. This is, look at the water will be here. Yes or no? Yes, the water is placed. The water mass quantity we have to know the quantity of the water filled inside the barrel calorimeters. We know that. Then there is provide these insulations. Why provide this insulation? To avoid the heat losses from this water into the surrounding. So this is the insulation is provided for this barrel calorimeter, guys. Okay, this is our complete calorimeter. This is the cover to avoid the leakage, whatever the leakage problem, this will be avoided with the help of these covers. This thermometer is placed inside the water to measure the temperature after the condensation and before the condensations. This is the steam pipe. ये steam pipe है बच्चों. ये steam pipe कहाँ से आएगा हमारे पास से? यहाँ पे एक बॉयलर रहेगा. ये बॉयलर से हम कुछ स्टीम सप्लाई करेंगे ये स्टीम पाइप को. ये कंट्रोल वॉल है. विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल वॉल द स्टीम इज पास वेयर इनसाइड द बैरल कैलोरीमीटर थ्रू दिस स्टीम नोजल. यहाँ पे स्टीम के नोजल लगे छोटे छोटे, इसमें से ये स्टीम इसमें आएंगी. जैसे ये स्टीम इसके अंदर आएंगी वाटर के साथ में क्या हो जाएंगी? मिक्स होके क्या हो जाएंगी? ठंडी. और ठंडी होने के बाद में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा. जो बढ़ेगा टेम्परेचर वो कौन मेजर करेगा? थर्मामीटर उसको मेजर कर लेगा. मतलब बिफोर द इंक्रीज द टेम्परेचर, बिफोर मिक्सिंग ऑफ द स्टीम, देन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द स्टीम विद द वाटर, दिस थर्मामीटर इज मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ स्टीम. सो हियर we can see heat lost by a wet steam. ये जो वेट स्टीम इसके अंदर से आ रही है, पाइप के अंदर कौन सी स्टीम है हमारे पास में? कौन सी क्वालिटी की है? वेट स्टीम. तो वेट स्टीम इज एंटर इनसाइड दिस बैरल कैलोरीमीटर्स. So heat lost by the wet steam. How much heat loss? This is the formula. Mass of steam into X HFG. Why X is mentioned? Because it is the wet steam and HFG means the enthalpy for a wet steam plus CPW of water T sat minus T2. Now another is what is heat gained by a water in the calorimeters.
the water which is present inside here, this water is absorb the heat from a steam. So heat gained by the calorimeter, what is mass of calorimeter into specific heat plus mass of water, specific heat of water into T2 minus T1 guys. So we have to equating both the equations. After equating, what is we get this value dryness fraction x, what is mass of calorimeter into specific heat of calorimeter plus mass of water plus specific heat of water T2 minus T1 minus mass of steam, specific heat of water, T saturated temperature of the water T2 upon mass of steam into HFG. So these are the parameter is mentioned. What is MC, m dot c, mass of the barrel calorimeters. ये जो हमारे पास में पूरा कैलोरीमीटर है, इसका मास कितना होगा कंप्लीट, वो हमने शो किया है m सफिक्स c से. CPC देखिए क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बैरल कैलोरीमीटर्स, व्हाट इज द यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन. MW व्हाट इज मास ऑफ वाटर फिल इन द कैलोरीमीटर, व्हाट इज द यूनिट केजी, कितना वाटर हमने इसके अंदर ये फिलअप किया है, राइट, दिस मच. CPW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. MS इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस इन केजी, कितना मास इसके अंदर ठंडा हो गया पूरा, वो मास ऑफ स्टीम. HFG मीन्स लैटेंट हीट ऑफ स्टीम एट अ गिवन प्रेशर P. लैटेंट हीट में क्या होता है बच्चों, फेज चेंज होता है, तो चेंज ऑफ फेज, ओके, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दिस इज हैपेंड इन लैटेंट हीट. ओके, तो HFG, क्योंकि स्टीम का फेज क्या हो जाएगा चेंज, वो स्टीम का में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी. T1 इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, जो थर्मामीटर ने मेजर कर लिया इनिशियल टेम्परेचर, और T2 क्या है उसका बच्चों फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये भी थर्मामीटर में मेजर कर लिया आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ अ स्टीम विद दिस वाटर्स. And T sat is the saturation temperature of a steam in degree Celsius at a given pressure P. The value of the dryness fraction is obtained by this method involves the considerable error, since the heat losses due to the convection and radiation are not taken into the accounts. अब इसके ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, बैरल कैलोरीमीटर में एकदम IM पे प्रॉब्लम है, हर बार एग्जाम में आता है. ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक स्टीम टेबल भी कर लेना है मार्केट में से, तो यू हैव टू परचेज द स्टीम टेबल्स. ओके, तो देखिए क्या प्रॉब्लम दिया है. द स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 5.5 बार इज, दिस द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इज पास इनटू द टैंक फिल्ड विद 80 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. सो मास ऑफ वाटर 80 kg, व्हाट इज द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. द टैंक इज मेड ऑफ कॉपर इज 10 kg इन मास. कॉपर का हमको मास दिया टैंक का कितने का है, 10 kg का है. एंड हैज़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.406 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये स्पेसिफिक हीट दी हमको बैरल कैलोरीमीटर की. आफ्टर द स्टीम हैज़ कंडेंस एंड मिक्स विथ वाटर, इट्स टेम्परेचर रीच हाउ मच 40 डिग्री सेल्सियस, ये T2 का वैल्यू दिया हमारे को. एंड द मास ऑफ द मिक्सचर बिकम्स हाउ मच 82.5 kg, मतलब वाटर और स्टीम मिलके वो कितना बन जाएगा 82.5 kg. सो दिस इज द टोटल मास ऑफ स्टीम एंड मास ऑफ वाटर 82.5 kg. डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक्स का हमको पैरामीटर निकालना है, इसके लिए बैरल कैलोरीमीटर्स के लिए. सो वी डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको पता है 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन. अब द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड सैचुरेशन टेम्परेचर एट 5.5 बार. तो जब आप स्टीम टेबल में जाएंगे बच्चों, तो आपको 5.5 बार पे ये वैल्यू निकालना है स्टीम टेबल में से. ओके, तो हमको HFG मिल गई 2097 किलो जूल पर केजी, और वहाँ का सैचुरेशन टेम्परेचर निकल जाएगा 155.48 डिग्री सेल्सियस. तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला हमने अभी अभी प्रूव किया यहाँ पे बैरल कैलोरीमीटर के लिए. ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. देन यू पुट ऑल द वैल्यूज, mass of calorimeter, specific heat of calorimeter plus mass of water, specific heat of water, final temperature minus initial temperatures, okay, minus mass of steam, specific heat of water, saturation temperature, ये T sat, minus final temperature divided by these things, mass of steam into HFG. So after putting all the values, you calculate the value of this dryness fraction, how much it is 0.749. 0.749, ये हमेशा 1 से कम होंगी. 1 जो है वो कहाँ से होंगी, सॉरी, सुपरहीटेड स्टीम के लिए. ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस सेकंड कैलोरीमीटर्स. व्हाट इज सेपरेटिंग कैलोरीमीटर्स.
So from the name you have to conclude that why it is called as the separating calorimeters. Okay guys, so look at here, this is the diagram of the separating calorimeters. बराबर है। तो देखिए बच्चों, ये किस तरह से वर्क करता है। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर इज़ वेरी इजी, और सब के सब कैलोरीमीटर क्या इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर सेपरेट द वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ वेट स्टीम मैकेनिकली बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शंस। मतलब वेट स्टीम में जो वाटर के पार्टिकल होंगे उसमें कि हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, मतलब वेट स्टीम जो है उसमें कि हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाटर पार्टिकल को दूर निकाल रहे हैं। लेकिन काय के मदद से निकाल रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफिनेशन हमको पता है, द पार्टिकल इज मूव अवे फ्रॉम द सेंटर्स, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो पार्टिकल हम निकाल रहे हैं काय में से, वेट स्टीम में से। तो देखिए बच्चों किस तरह से प्रोसेस है यहाँ पे होंगी। द वेट स्टीम, द वेट स्टीम पासिंग इनटू द कैलोरीमीटर। ओके, ये देखिए ये मेन पाइप है, ये मेन पाइप में से वेट स्टीम जहाँ कहाँ जाएंगी, ये कैलोरीमीटर में चल जाएंगी बच्चों। ओके, तो इसके कंपोनेंट देखिए, सैम्पलिंग ट्यूब, वॉल, आउटर वेसल, बैफल प्लेट, सेपरेटेड मॉइस्चर, इनर वेसल, स्केल, बैरल कैलोरीमीटर एंड वेइंग प्लेटफॉर्म्स। यस और नो? यस, these are the various components which is used in a separating calorimeters. Okay guys, तो देखिए अभी the steam passing into the calorimeter is forced to change its direction of motion by means of a perforated cup. यहाँ पे ये कुछ परफोरेटेड कप दिख रहे हैं आपको, बैफल प्लेट दिख रहा है आपको, इसमें से ये सैम्पलिंग ट्यूब में जो स्टीम आएंगी, विद द हेल्प ऑफ वॉल वी रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम, और ये इसके ऊपर जाके इंस्टेट हो जाएंगी, ऐसे इस शेप के है। बराबर है। जब इसके ऊपर ऐसी स्टीम इंस्टेंट हो जाएंगी तो यहाँ से ये वाटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विच फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बराबर है। बैफल प्लेट का काम ही है टू गिव द डायरेक्शंस एंड टू सपोर्ट दिस सैम्पलिंग ट्यूब। परफोरेटेड कप को उन्होंने क्या कहा है, बैफल प्लेट्स। द वाटर पार्टिकल ड्यू टू देयर ग्रेटर मूवमेंट ऑफ एनर्जी बीइंग हेवियर tend to move away and get separated from the mixtures as shown in figure. Some quantity of a mixture is drained through the perforated cup. बराबर है। कुछ इसमें से निकल जाएंगे, कुछ पार्टिकल निकल जाएंगे, कुछ नीचे ड्रेन हो जाएंगे, निकल जाएंगे, नीचे गिरेंगे। Some quantity of moisture drains through the perforated cup and some quantity falls as a large droplets and some quantity stick with the wall of the separators. कुछ नीचे गिर जाएंगे, कुछ रिमूव हो जाएंगे, कुछ उसको चिपक के रहेंगे। ओके, द कंडेंस इज कलेक्टेड इन द सेपरेटर्स। कंडेंस को हम, ये जो सेपरेटर दिख रहा है बच्चों आपको, इस सेपरेटर में हम कलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड इट्स क्वांटिटी इज मेजर बाय अ ग्लास ट्यूब। ये जो ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा, ये ग्लास ट्यूब के अंदर जैसे जैसे ये कंडेंस की लेवल बढ़ेंगी, ये स्केल जो है, ये स्केल ग्लास ट्यूब की, द ग्लास ट्यूब इज मेजर द लेवल्स। ओके, ये कंडेंस का लेवल ये मेजर कर लेगा। ओके, द ड्राई स्टीम इज पास थ्रू द स्मॉल कंडेंसर वेयर इज कंडेंस एंड इट्स मास इज आल्सो मेजर्स। अब ये देखिए यहाँ से ये ड्राई स्टीम निकल गई है, दिख रहा है आपको रास्ता उसका। ये ड्राई स्टीम इस तरह से आएंगी जिसके अंदर अब कोई वाटर पार्टिकल्स नहीं है, और ये ड्राई स्टीम अभी कहाँ एंटर करेंगी, ये बैरल कैलोरीमीटर में। अब जब ये इसके अंदर आ रही बैरल कैलोरीमीटर के अंदर, ये जो आ रही है, ये देखो मैं बता रहा हूँ, दैट इज द ड्राई स्टीम, क्योंकि इसके वाटर पार्टिकल हमने यहाँ पे रिमूव कर डाले, और ये कितना जमा हो गया यहाँ पे ये भी हमने मेजर कर डाला ये वाले स्केल से। और ये जो टोटल जो पूरी ड्राई स्टीम जा रही है अभी हमारे पास में, इधर से भी आएंगी, दोनों तरफ पे आएंगी, वो कहाँ एंटर होंगी अभी, बैरल कैलोरीमीटर के अंदर। ओके, द ड्राई स्टीम पासिंग थ्रू द स्मॉल कंडेंसर वेयर इज कंडेंस्ड एंड इट्स मास इज आल्सो मेजर, और इसका भी मास हम मेजर कर लेंगे। ओके, so dryness fraction of x of a wet steam is determined. What is the formula? X is equal to mg upon mg plus mw, mass of dry steam plus mass of dry steam plus mass of water. Okay, we can observe here where mg is the mass of dry saturated steam and mw is the mass of water particle in suspension in kg. Then it is noticed that
The dryness fraction obtained from such experimentation is not accurate, but it is just close to approximations. मतलब इसके लिए सिंपल फार्मूला है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के लिए कौन सा, x इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी प्लस एम डब्ल्यू गाइस. ओके, अब इसकी भी देखिए एक सिंपल न्यूमेरिकल है, एकदम आईएमपी न्यूमेरिकल से बच्चों. देखिए सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का क्या प्रॉब्लम है. इन एन एक्सपेरिमेंट a sample of a wet steam is passed through the separating calorimeters, okay, at some instant. The mass of water is collected in the separator is how much, 0.2 kg, while the amount of steam condensed was found to be 2.5 kg. Determine the dryness fraction of a steam entering in the calorimeters. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मास ऑफ वाटर दिया हमारे को 0.2 kg और मास ऑफ ड्राई स्टीम दिया 2.5 kg. तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको निकालना है x की वैल्यू. तो क्या फार्मूला है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ वेट स्टीम इज कैलकुलेटेड बाय x इज इक्वल टू व्हाट इज mg अपॉन mg प्लस mw. सो x इज इक्वल टू mg की वैल्यू पुट की हमने 2.5, mg 2.5 प्लस 0.2, व्हाट इज द x इज इक्वल टू 0.926 गाइस. तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम. नाउ लुक एट हियर, वी हैव टू डिस्कस द थर्ड instruments, third calorimeters is here. So what is this third name? It is called as the throttling calorimeters. So how it is work, look at here. This is the main steam pipe, this is a steam tube, here is the pressure measurement device which measure the pressure of the steam. This is the throttle plug, this throttle plug, the steam is enter into this calorimeters. Okay, this is the manometer which is used to measure the pressure of a steam. This is the thermometer is used to measure the temperature of a steam. There is provide this insulation to avoid the heat loss from system to surroundings. Then there is a use this what is condenser. The cooling water is inlet into the condenser and cooling water is out. Then after that at the bottom position what is, we collect the condensed, collected and weighted. Okay. So how it is work, look at here. The schematic of a throttling calorimeter as shown in figures. A sample of a wet steam is at a pressure P1 is taken from the steam main through the perforated sampling tubes. मतलब हमने एक स्टीम इसके अंदर सैंपल कर दिया ये, और ये ट्यूब के अंदर हमने सर्कुलेट कर दिया किसको, स्टीम को. कौन सी स्टीम बच्चों, वेट स्टीम. The wet steam then throttle through the partial open or restricted valve to a pressure P2. अब ये जो थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व का काम क्या बच्चों, प्रेशर को चेंज करना, प्रेशर को रिड्यूस कर देता है वो, लेकिन एंथैल्पी क्या रहती है उसमें सेम रहती है, लेकिन प्रेशर को क्या करता है थ्रोटल वाल्व चेंज करता है. ओके, तो दिस इज द थ्रोटल वाल्व इज पार्शियली ओपन और रिस्ट्रिक्टेड वाल्व टू प्रेशर P2 and temperature T2 in such a way that the steam reaches in superheated regions. अब जैसे ही यहाँ से ये थ्रोटल वाल्व इसका प्रेशर कम कर देगा बच्चों, तो टेम्परेचर जो है सुपरहीटेड स्टीम के लिए वो कम हो जाएगा. तो जिस टेम्परेचर पे इसके अंदर से स्टीम आ रही है, लेकिन जैसे ही ये थ्रोटल वाल्व में से बाहर निकलती है उसका प्रेशर तुरंत कम हो जाता है लेस देन P1 से. तो प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है. ये स्टीम जैसी थ्रोटल वाल्व में से बाहर निकलती है वो सुपरहीटेड रीजन में पहुंच जाती है. ओके, and during the throttling process the enthalpy of a steam is remains constant. The throttling process is irreversible process. Okay, and hence it is shown by the dotted line on a HS diagrams. ये हमने देखी HS डायग्राम बनाई यहाँ पे बच्चों, इसकी एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी बराबर है. ये इनिशियल प्रेशर है P1, ये P1 का प्रेशर चले गया हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ये प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर P2. अब स्टार्ट बिफोर थ्रोटलिंग, देखिए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये लाइन हमको पता है ये क्या है, सैचुरेशन कर्व. यहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में है, सैचुरेटेड वेपर. यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1. लेकिन ये कर्व के नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन एग्जिट है, यहाँ पे क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन लेस देन 1, मतलब 0.90 और 99 व्हाट एवर्स. ओके, 99 व्हाट कितनी भी वैल्यू,
अब स्टीम जो एंटर हो रही है ये पॉइंट से एंटर हो रही है, जो कौन सी क्वालिटी की है हमारे पास में, वेट स्टीम। लेकिन जैसी ये थ्रोटल होती है बच्चों, तो एंथैल्पी जो है हमारी वो तो कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एंट्रोपी है S1, लेकिन थ्रोटल होने के बाद में एंट्रोपी कितनी है S2, और S2 की वैल्यू ग्रेटर देन है S1 से। क्यों एंट्रोपी बढ़ी? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब कम हो गया और वो स्टीम सुपर हीटेड हो गई। तो देखिए जैसे ही थ्रोटल हो जाएंगी तो ये स्टीम वेट से कहाँ निकल गई बच्चों, सुपर हीटेड में। क्योंकि ये जो जोन है पूरा, ये पूरा का पूरा जोन क्या है हमारे पास में, सुपर हीटेड जोन है, सुपर हीटेड स्टीम जोन। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होती है, ड्राई वेट स्टीम क्या हो जाएंगे हमारे पास में, सुपर हीटेड। तो स्टेट आफ्टर थ्रोटलिंग ये 2 मिल गया हमारे को, ओके। और टेम्परेचर कितना मिल गया, T2 मिल गया, ओके। तो ये जो है हमारी दैट इज कॉल्ड एज द थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑन HS डायग्राम। एकदम IMP है ये डायग्राम, आपको एग्जाम में भी निकालना पड़ता बच्चों। सो हियर the state 1 is defined by a pressure P1, dryness fraction X1, while state 2 is superheated region after throttling can be defined by the pressure P2 and temperature T2. So using the properties of a wet steam at P1 and superheated steam at pressure P2 and T2 we get, ये एंथैल्पी का रिलेशन मिल गया हमको H1 और H2 का। तो फिर हम H1, अब ये जो H1 है बच्चों ये कहाँ पे हमारे पास में, वेट रीजन में है। तो H1 की वैल्यू क्या आएगी फिर हमारे पास में, HF प्लस X HFG। और H2 क्या है हमारा, सुपर हीटेड जोन में है, ये सुपर हीटेड जोन में। लेकिन दोनों की वैल्यू हमने क्या लिखी, सेम लिखी है। तो ये देखिए फिर वेट के लिए और ये H2 के लिए है। तो इसके ऊपर से X1 मिल गया हमारे को, H2 माइनस HF1 अपॉन HFG1। सो वेयर HF1 इज अ सेंसिबल हीट ऑफ वेट स्टीम एट प्रेशर P1, HFG इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट प्रेशर P1, और H2 जो है एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एट प्रेशर P2 एंड T2। इसका फार्मूला क्या रहता है सुपरहीटेड का, Hg2 प्लस CPS T2 माइनस Tsat। So to obtain the good approximation from a throttling calorimeter, the steam after throttling should superheated at least by 5 degree Celsius, इतनी हो जाएंगी। If the steam is very hot, then the resultant dryness fraction obtained by this technique is not a very accurate. Yes or no? Yes. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब थ्रोटलिंग का प्रॉब्लम दिया हमारे को, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का सब IMP प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्टीम टेबल से आपको सॉल्व करना है। स्टीम टेबल में अलग अलग प्रकार की वैल्यू दी है प्रेशर टेम्परेचर पे। तो इन अ थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर द स्टीम इज एडमिटेड, व्हाट इज द प्रेशर, 10 बार। So pressure is 10 bar. It is throttled to a atmospheric pressure at a temperature of how much, 1110 degree Celsius. Determine the dryness fraction of a steam. Assume the specific heat of a superheated steam is how much, 2.2 kilojoule per kg kelvins. So how to solve? We know the pressure, we know the after throttling pressure, we know the T2 and we know the CPS, the dryness fraction of the steam. अब ये स्टीम टेबल से मैंने स्टेट 1 के लिए 10 बार पे प्रेशर ये वैल्यू निकाली स्टीम टेबल से। HF1 निकाला मैंने 762.81 किलोजूल पर केजी, फिर निकाला मैंने HFG1 2014.3 किलोजूल पर केजी। स्टेट 2 के लिए ये प्रेशर पे हमने निकाली स्टीम टेबल से वैल्यू कौन सी, Hg2 की 2676 किलोजूल पर केजी, और T सैचुरेटेड कितना रहेगा वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आपको बच्चों क्या यूज़ करना है, स्टीम टेबल्स जो मार्केट में फ्री बिकट मिलता है, ये आपको बिकट लेना है। तो एज शोन इन फिगर वी नो दैट द एंथैल्पी ऑफ अ स्टीम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये हमको पता है। H1 बराबर क्या रहता है, H2। तो H1 का क्या फार्मूला है बच्चों, HF1 प्लस X HFG1, और H2 का क्या फार्मूला है, Hg2 प्लस CPS T2 माइनस Tsat2। तो HF1 की वैल्यू हमने पुट की है 762.81, X इंटू HFG पुट किया हमने 2014.3, Hg2 पुट किया हमने बच्चों 2676 प्लस 2.2, T2 पुट किया हमने बच्चों 1110 माइनस Tsat 100। X का वैल्यू कितना मिला हमको, 0.961। दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम। ओके, वेरी सिंपल इजी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स वी डिस्कस द लास्ट topic of this unit,
कंबाइन सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर्स। तो यहाँ पे कंबाइन मतलब अब यहाँ पे दो हमने कंबाइन किया, किसको उसको कंबाइन किया बच्चों, एक किया हमने सेपरेटिंग को कंबाइन और दूसरा कंबाइन किया हमने थ्रोटलिंग को, इसलिए इसका नाम रखा है कंबाइन सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर्स। तो देखिए बच्चों कैसे वर्क करेगा। व्हेन द स्टीम इज वेरी वेरी वेट, एकदम वेट क्वालिटी की स्टीम है, देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम इज डिटरमाइन यूजिंग अ सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। जब स्टीम बहुत ही वेट है तब हम ये वाला इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करेंगे टू मेजर द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम। ओके, द वेट स्टीम टेकन फ्रॉम द स्टीम मेन एंड स्टीम स्टॉप वॉल इज फर्स्ट पास थ्रू द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर्स। अब ये हमारे पास में मेन स्टीम मेन पाइप है, कंपोनेंट देखिए, इसका प्रेशर मेजर कर लिया हमने प्रेशर गेज से, और ये परफोर्टेड पाइप है, तो ये स्टीम हमने सैम्पलिंग के लिए ली और सबसे पहले कहाँ पास की हमने बच्चों, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में। ये स्टॉप वॉल क्या करेगा, स्टीम को रेगुलेट करेगा, बाद में ये स्टीम एंटर होगी कहाँ पे, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में। ये जो परफोर्टेड कप लगे है, बैफल प्लेट्स लगे है, ये किसको सेपरेट कर देगा यहाँ से, वाटर ड्रॉपलेट्स को। ये वाटर ड्रॉपलेट्स मूव हो गए विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, वो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे। जैसे ये जमा हो जाएंगे तो ये जो वाटर गेज की स्केल लगी है, ये स्केल ये वाटर पार्टिकल को मेजर कर लिए, मतलब मेजर कर लेगा कितना यहाँ पे ये जमा हो गया इसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद में फिर जो हमारे पास में बची हुई स्टीम है वो कहाँ जाएंगी बच्चों, ये सेकंड थ्रोटलिंग में। तो थ्रोटलिंग में जाने के पहले इसका प्रेशर जो यहाँ पे P2 लगा, ये प्रेशर उसका प्रेशर को मेजर कर लेगा। बाद में ये ओरिफिस से कहाँ एंटर हो जाएंगी बच्चों, थ्रोटल। ओरिफिस मतलब थ्रोटलिंग प्रोसेस। जैसे यहाँ पे आ जाएंगी, थर्मामीटर उसका टेम्परेचर मेजर कर लेगा। ओके, ये मर्कुरी मैनोमीटर भी उसका प्रेशर मेजर कर लेगा, थर्मामीटर टेम्परेचर, मैनोमीटर उसका प्रेशर। और फिर बाद में स्टीम यहाँ से आउट हो जाएंगी, एंड इन दिस वे वी हैव कैन मेजर द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम। तो देखिए यहाँ पे सो सम पार्ट ऑफ द मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम द स्टीम ड्यू टू द सडन चेंज इन इट्स डायरेक्शंस। ओके, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी ये सेपरेटिंग में। द रिजल्टिंग सेमी ड्राई स्टीम इज देन थ्रोटल इनटू द थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। जो सेमी ड्राई स्टीम है यहाँ पे ये थ्रोटल हो जाएंगी थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में। द स्टीम कमिंग आउट द थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर इज सुपर हीटेड एट अ प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2, जो मेजर कर लेगा थर्मामीटर और मैनोमीटर्स। The throttling calorimeter is well insulated to prevent any heat loss. Okay, the steam coming out of the throttling calorimeter is condensed and mass is measured. Okay, तो देखिए यहाँ पे if mW is a mass of moisture collected in separator, mg is a mass of steam condensed after throttling, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का कैसे मेजर करते हैं हम, x1 mg अपॉन mg प्लस mw। सिमिलरली the dryness fraction is x2 from the throttling calorimeter is obtained as discussed in earlier. What is x2 is equal to h2 minus hf1 upon hfg1। तो टोटल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम कैसे मेजर करेंगे, x इज इक्वल टू x1 इंटू x2। गाइस समझ में आ गया, मतलब दोनों इससे हम मेजर करेंगे, इससे भी मेजर करेंगे, इससे मेजर करेंगे हम x1 और ये इससे मेजर करेंगे हम थ्रोटल से x2। तो x बराबर हमारे पास में आएगा x1 डॉट इंटू x2। इस तरह से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर कर लेंगे सेपरेटिंग, कंबाइन सेपरेटिंग और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर से। अब इसका न्यूमेरिकल देखिए, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। एग्जांपल नंबर 4, अ कंबाइन सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर was used to determine the dryness fraction of a steam flowing through a steam main at a pressure of 9 bar। देखिए इसका प्रेशर दिया हमारे को 9 बार। The pressure and temperature of a steam after throttling were, how much pressure, 1.2 बार प्रेशर डिक्रीज हो गया। थ्रोटलिंग का काम है प्रेशर को डिक्रीज करना है। देखिए यहाँ पे 9 बार है, यहाँ पे कितना हो गया, 1.25 बार। और टेम्परेचर को बढ़ाना है, देखिए टेम्परेचर बढ़ गया वहाँ पे कितना, 115 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ अ स्टीम इज कंडेंस आफ्टर थ्रोटलिंग, हाउ मच, इट इज 2.2 kg। थ्रोटलिंग के बाद में हमको कौन सी स्टीम मिलेंगी, सुपर हीटेड स्टीम। एंड द मास ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द सेपरेटर वाज हाउ मच, इट इज 0.2 kg। जो वाटर ड्रॉपलेट्स रिमूव हो जाएंगे बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। एस्टिमेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम इन द मेन, टेक स्पेसिफिक हीट फॉर अ सुपर हीटेड स्टीम एज 2.1 किलोजूल पर kg केल्विन्स। So very easy, how can you solve, look at here,
द ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर x ऑफ अ वेट स्टीम फ्रॉम अ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, क्या फार्मूला, x1 इज इक्वल टू mg अपॉन mg प्लस mw। तो mg की वैल्यू हमको दी है बच्चों 2.2 mw है 0.2, तो कितना आ गया x1 आ गया 0.9167। इसको कोई यूनिट्स नहीं रहता, बराबर है। इसके बाद में बच्चों व्हाट इज फॉर थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टीम बिफोर थ्रोटलिंग, ये P1 9 बार, ये हमने स्टीम टेबल का यूज़ किया। यहाँ पे स्टीम टेबल आपको परचेस करना है मार्केट में से और उसमें से देखना है HF1 हमने देखा और HFG1 की वैल्यू देखी। आफ्टर थ्रोटलिंग कितना प्रेशर हो गया 1.25 बार, तो हमने ये दो वैल्यू निकाली टी सैट की 106 डिग्री सेल्सियस और ये ड्राई स्टीम की वैल्यू निकाली Hg2 2685.4 किलो जूल पर kg। ओके, तो एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग क्या होंगे हमारे पास में, वेट स्टीम के लिए फार्मूला H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X2 HFG1। तो HF1 की वैल्यू पुट की हमने X2 इंटू HFG1, ये वाली वैल्यू बच्चों। एंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग सुपर हीटेड के लिए क्या फार्मूला Hg2 प्लस CPS T2 माइनस T सैट। तो Hg2 की वैल्यू पुट की हमने 2685.4 प्लस CPS स्पेसिफिक हीट फॉर सुपर हीट स्टीम 2.1 into 115 minus 106, how much S2 is 2704.3 kilojoule per kg। so equating to enthalpies, X2 हमने निकाला ये फार्मूले से, ओके, S2 minus this one, ओके, so S2 is 2704.3 minus this one 742.83 upon 2031.1, we getting the X2 is how much, it is 0.9657, क्योंकि X2 का हमको फार्मूला पता है। क्या फार्मूला X2 का, ये वाला HF1 माइनस H2 माइनस HF1 अपॉन HFG1, ये फार्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया है। सो फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 डॉट x2, तो x1 डॉट x2 इज इक्वल टू हाउ मच, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0.885। ओके गाइस, तो इसमें क्या कुछ ये सिंपल प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करते हैं अभी कुछ। देखिए एग्जांपल नंबर 5, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंथैल्पी स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ अ 1 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ हाउ मच 1.9 मेगा पास्कल हैविंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन हाउ मच 0.85। 1 kg ऑफ अ वेट स्टीम दिया है बच्चों, उसका प्रेशर दिया है 1.9 मेगा पास्कल, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है 0.85। क्या निकालना है हमको, टोटल हीट, वॉल्यूम और डेंसिटी। अब स्टीम टेबल से हमने ये प्रेशर पे 1.9 मेगा पास्कल इसका कन्वर्शन किया हमने 19 बार में, तो ये स्टीम टेबल में से हमने ये वैल्यू निकाली सब। ओके, टी सैचुरेशन की, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, एंथैल्पी ऑफ अ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर अ ड्राई स्टीम और ये एंथैल्पी फॉर इवापोरेशंस, ये सब वैल्यू हमने निकाली कहाँ से, स्टीम टेबल में से। ये डायरेक्ट रेडीमेड वहाँ पे वैल्यू दी है बच्चों। तो एंथैल्पी ऑफ अ स्टीम क्या फार्मूला है, H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG, ये है हमारी ड्राई स्टीम के लिए फार्मूला। दिस इज फार्मूला फॉर अ ड्राई स्टीम, या फिर काय के लिए फार्मूला है बच्चों, सैचुरेटेड स्टीम, राइट। सो HF की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, स्टीम टेबल से 896.8 प्लस एक्स की वैल्यू दी है 0.85, HFG हमने निकाली स्टीम टेबल से 1899.3, तो H कितना मिला हमको बच्चों 2511.20 किलो जूल पर kg। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम, क्या फार्मूला, ये डेरिवेशन में बनाया था एक्स VG, क्योंकि V आपको क्या करते हैं हम निगलेक्ट करते हैं, बहुत ही छोटा रहता है, तो x पता है, VG हमने निकाला है स्टीम टेबल में से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 0.0889 मीटर क्यूब, ओके, पर kg के लिए। डेंसिटी बोले तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, सो 1 दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो डेंसिटी आ गई उसकी 11.248 kg पर मीटर क्यूब गाइस। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, एग्जांपल नंबर 6, कैलकुलेट द वॉल्यूम डेंसिटी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ 2 kg ऑफ स्टीम एट अ टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85।
तो वेट स्टीम का मास दिया हमको बच्चों 2 kg, उसका टेम्परेचर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया 0.85। क्या निकालना है? वॉल्यूम, डेंसिटी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो फिर हमने स्टीम टेबल्स में से, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में से ये टेम्परेचर पे ये सब की सब वैल्यू निकाली स्टीम टेबल में से। सैचुरेशन प्रेशर, specific volume of a dry steam, enthalpy for a fluid, enthalpy for evaporation, entropy for a fluid and entropy for evaporations। तो अब सबसे पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? एक्स वीजी। तो एक्स की वैल्यू पुट की, वीजी की हमने निकाली है स्टीम टेबल में से, जो है 3.40715। तो हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया 2.896 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, तो अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो वॉल्यूम क्या लेके आएगा? फिर मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि मास क्या है? केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर केजी। तो ये केजी क्या हो जाएगा आंसर? तो वॉल्यूम क्या आएगा फिर? मीटर क्यूब। इसलिए ये 2 इंटू दिस, तो वी गेटिंग द वॉल्यूम 5.792 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ स्टीम मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये कितने आ गए? 0.345 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम, क्या फार्मूला है वेट स्टीम का? एचएफ प्लस एक्स HFG। एचएफ की वैल्यू पुट की हमने स्टीम टेबल में से 334.88 प्लस 0.85 इंटू 2308.77, कितनी आ गई? 2297.33 किलो जूल पर केजी। टोटल एंथैल्पी देखिए अभी कितने आएंगी? एच मल्टीप्लाइड बाय मास, कितना मास है हमारे पास में? 2। तो कितनी निकाली हमने पर केजी के लिए? इतनी 2297.33। तो कितनी एंथैल्पी आ गई टोटल? 4594.66 किलो जूल। उसी तरह स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ स्टीम, क्या फार्मूला एस वेट के लिए? SF प्लस एक्स SFG। SF की वैल्यू पुट की 1.0752 प्लस एक्स 0.85, SFG 6.5369। तो हमको एस वेट मिला बच्चों कितना? 6.631 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो टोटल एंट्रोपी कितनी होगी? मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय वेट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 6.631। तो टोटल एंट्रोपी कितनी आ गई? यस बराबर हमारे पास में आ गया 13.26 किलो जूल पर केल्विन। ओके गाइस, चलिए ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार व्हेन द कंडीशन ऑफ स्टीम। पहली कंडीशन क्या है? वेट विथ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85। सेकंड कंडीशन क्या है स्टीम की? ड्राई एंड सैचुरेटेड। और थर्ड कंडीशन क्या है? सुपर हीटेड। डिग्री ऑफ सुपर हीट हमको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। The specific heat of a superheated steam at a constant pressure is how much? It is 2.01 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। 1 kg ऑफ अ स्टीम दिया है एट अ 10 बार विथ 3 कंडीशंस। पहली है वेट, सेकंड है ड्राई और थर्ड है सुपर हीटेड्स। ओके, इंटरनल एनर्जी हमको निकालना है। तो स्टीम टेबल में से सबसे पहले हम ये 10 बार प्रेशर पे ये सब वैल्यू हमने निकाली। टी सैचुरेशन, specific volume, enthalpy for a fluid, enthalpy for evaporation and enthalpy for a dry steam। तो सबसे पहले देखते हैं when the steam is wet the dryness fraction is 0.85। तो specific enthalpy कितनी रहेंगी? तो H wet is equal to HF plus x HFG। HF की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की, HFG की। तो H wet कितना मिला हमारे को? H wet मिल गया 2475.8 किलो जूल पर केजी गाइस। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला है? यू वेट इज इक्वल टू एच वेट माइनस पी एक्स वी जी। ये हमने पढ़ चुके ऑलरेडी। एच वेट पुट किया, प्रेशर को हमने कन्वर्ट किया किलो पास्कल में, बराबर है। एक्स की वैल्यू पुट की, वी जी की वैल्यू पुट की, तो हमको यू इंटरनल एनर्जी मिल गई कितनी? यू वेट इज 2310.52 किलो जूल पर केजी। ओके, अब ले लेंगे ड्राई स्टीम के लिए। ड्राई स्टीम के लिए क्या हो जाएगा? एच जी माइनस पी वी जी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे? 1। तो एच जी की वैल्यू पुट की,
प्रेशर हमने लिया ये किलो पास्कल में, बार में कन्वर्ट किया उसको किलो पास्कल में, वीजी पुट किया। तो यहाँ पे हमको यूजी मिली इंटरनल एनर्जी 2583.64 किलो जूल पर केजी। अब जब स्टीम हमारे पास में सुपर हीटेड है तो हम सबसे पहले डिग्री ऑफ सुपर हीट का फार्मूला निकालते। क्या फार्मूला है? टी सूप माइनस टी सैट। कितना दिया है? 50। तो टी सूप कितना हो गया? टी सैचुरेशन प्लस 50। ये टी सैचुरेशन वैल्यू हमने स्टीम टेबल से निकाली। तो स्टीम का सुपर हीटेड टेम्परेचर कितना है? 229.9 डिग्री सेल्सियस। So the specific enthalpy of a superheated steam, what is the formula? H soup is equal to Hg plus Cps T soup minus T sat। तो Hg की वैल्यू पुट की हमने बच्चों, Cps पुट किया और ये डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो कितनी मिली हमको एंथैल्पी? सुपर हीट के लिए हमको मिली एंथैल्पी 2878.58 किलो जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम निकालेंगे तो V सूप इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों? वी नो द फार्मूला 0.19944। यस और नो? यस। ये देखिए V सूप हमारे पास में रहता है, इसका फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, Vg इंटू, यस और नो? यस, Vg इंटू टी सूप अपॉन टी सैट। ये V सूप का फार्मूला है। तो ये हमने Vg की वैल्यू पुट की। ये टी सूप काय में है बच्चों? ये सेल्सियस में, तो केल्विन करने के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया। टी सैट कितना है हमारे पास में? 179 बराबर है। जो हमने स्टीम टेबल से निकाला उसको हमने केल्विन में 277 ऐड किया उसके अंदर। तो हमको वी सूप मिला 0.216 मीटर क्यूब पर केजी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम यू सूप इज इक्वल टू एच सूप माइनस पी वी सूप। तो एच सूप हमने निकाला, प्रेशर को हमने किया किलो में, वी सूप हमने निकाला। तो यू सूप की वैल्यू हमको मिल गई, यू सुपर हीटेड स्टीम इज 2662.67 किलो जूल पर केजी। Okay, so these are the simple numerical we will cover, boys. Now this unit is completed. Okay, then our after that we will be discuss our last unit, unit number 6, air cycles, means diesel cycle, Otto cycle, Joule and Brayton cycles. Okay, so in next lecture we will discuss our last unit, unit number 6. Okay, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.